السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ تو آج میں لے کر آ چکی ہوں آپ سب کے بہت ہی زیادہ پیارے سے ناول لمحے عاشقی کے چیپٹر 11 کو لے کر، جسے آپ نے اپنی اتنی محبت دی تو چینل کو سبسکرائب کرتے رہیں اور ساتھ ہی ویڈیو کو لائک کرتے رہیں، جس سے آپ کی محبت ہمیں دکھائی دے سکے۔ تو اب ہم جلدی سے پڑھتے ہیں آج والے ایپیسوڈ کو۔ صنم جو کہ گہری نیند سوئی ہوئی تھی، صبح کے 9 بجنے کے بعد بھی اس کی آنکھ نہ کھلی۔ کروٹ بدلتی وہ چہرے پر مسکراہٹ لائے بڑے ہی سکون سے سوئی ہوئی تھی۔ وہ انجان تھی اس بات سے کہ آخر وہ کس جگہ موجود ہے، آج اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور اس کی زندگی آج کے دن کون سا موڑ لینے والی ہے۔ ان سب باتوں سے وہ معصوم سی لڑکی انجان تھی، لیکن اس کے کروٹ بدلنے سے اس کے پاس لیٹا ارحم، جو کہ بیڈ کی دوسری سائڈ اور صنم کے پاس سویا ہوا تھا، کیونکہ بے شک وہ اس کے قریب تو نہ آ سکتا تھا، لیکن اسے سکون کی نیند تو صنم کے قریب رہ کر ہی میسر ہونی تھی۔ لیکن صنم کے اس کے ہلنے کے باعث اس کی آنکھ کھل گئی۔ اپنے پاس صنم کو دیکھو، اسے یوں غور سے دیکھنے لگا جیسے کہ وہ ایک پل کے لیے حیران ہوا ہو اپنے پاس صنم کو دیکھ کر، کیونکہ اتنے سالوں سے اکیلے رہنے والے شخص کو کہاں عادت تھی صبح صبح اپنے پاس کسی لڑکی کو دیکھنے کی۔ وہ خود بھی بھول چکا تھا کہ کل ہی وہ صنم کو زبردستی اٹھا کر لایا ہے۔ لیکن تبھی دیوار پر لگے بڑے سے ٹائم پیس کو دیکھے وہ حیران ہوتا اتنا ٹائم ہو چکا ہے، لیکن میری آنکھ کیوں نہ کھلی؟ پہلی مرتبہ ارحم کے ساتھ ایسے ہوا تھا، کیونکہ ارحم ٹائم کا بہت پابند تھا۔ وہ اپنا ہر کام وقت پر ہی کرتا تھا، اسی وجہ سے یہ بات اس کے لیے کافی بڑی تھی کہ آج وہ اتنی دیر تک سوتا رہا۔ ایک مرتبہ پھر سے صنم کو یوں سوئے دیکھ اپنے بھویں کو سگیڑے جیسے کہ اسے برا لگا ہو صنم کا اتنی دیر تک سونا بھی۔ اسی وجہ سے وہ اسے اٹھنے کا کہنے لگا، لیکن جیسے اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا صنم کو جھنجھوڑ کر جگانے کے لیے، اس کا ہاتھ وہیں پر ہی تھم گیا، کیونکہ صنم کی خوبصورتی تب مزید بڑھ گئی جب کھڑکی سے اندر دھوپ آسمان کو چیرتی صنم کے چہرے پر پڑنے لگی، جس کے باعث اس کا روشن چہرہ مزید نور سے بڑھ گیا۔ ارحم بھی خود پر اختیار کھوئے آہستہ آہستہ سے اس کے قریب جانے لگا، کیونکہ وہ چاہ کر بھی خود کو روک نہ سکتا تھا۔ صنم جو کہ پہلے سے اس کی محبت تھی، جسے یوں دیکھنے پر خود پر کنٹرول کرنا کسی سزا کے برابر ہے۔ اس کے چہرے پر جھکتا ہوا اس کے ہونٹوں کو چومنے لگا۔ صنم کی نیند ارحم کی اس حرکت سے بھی نہ کھلی تو وہ ہونٹوں پر کس کرتا نیچے کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کے گردن کو چومنے پر وہ نیند میں ہی ہستی مت کرو کہنے لگی، جسے دیکھ ارحم کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی، اور وہ کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر سیدھا ایک مرتبہ پھر سے اس کے ہونٹوں پر جھکے مضبوطی سے انہیں اپنے لبوں میں قید کرتا کس کرنے لگا، کیونکہ یہ کرنا تو لازم ہو چکا تھا اپنی ذات کو اذیت پہنچانے سے بچانے کے لیے۔ کسی کے ہونٹوں اور داڑھی کو اپنے چہرے اور ہونٹوں کے ساتھ محسوس کے فوراً سے صنم کی آنکھ کھل گئی، اور ارحم کو اپنے اوپر جھکے دیکھ اسے کاندھے سے پکڑے خود سے دور کیا، چونکہ ارحم کے منہ سے ڈرنک اور سگریٹ کی بو اپنی سانسوں میں اترتی محسوس ہو رہی تھی، اسی وجہ سے اس کی آنکھ فوراً سے کھل گئی۔ گڈ مارننگ، اپنے ہونٹوں کو صاف کرتا ارحم بڑے ہی آرام سے بول گیا۔ صنم بھی بیٹھ سے کھڑی ہوتی۔ تم یہاں پر کیا کر رہے تھے؟ یہ میرے ساتھ؟ صنم ڈر بھی رہی تھی، لیکن پھر بھی وہ ہمت کے ساتھ لیے ارحم سے پوچھنے لگی، کیونکہ اسے رومانس محبت کچھ بھی کہہ سکتی ہو، ایکچولی تمہارے ہونٹوں کا ٹیسٹ بہت ٹیسٹی ہے، دل کرتا ہے کہ کھا جاؤ انہیں۔ تمہارے نرم و ملائم ہونٹ ارحم رانا کو اپنی جانب کھینچتے ہیں، اس کے رس کو اپنے اندر اتارنے کی خواہش زور و شور سے مجھے پریشان کرنے لگتی ہے۔ بس کچھ دیر اور پھر تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم ارحم رانا کے ساتھ جائز رشتے میں منسلک ہوئے اس کی ملکیت بن جاؤ گی۔ ارحم نے اسے اپنے منصوبے سے آگاہ کیا کہ وہ کیا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ تو صبح ہو چکی ہے، مجھے جانے دو اپنے گھر،
सनम भी मुकम्मल तौर पर अरहम की बातों को इग्नोर करती सिर्फ वापस अपने घर जाने का कहने लगी, क्योंकि एक रात वह मुश्किल से इसने गुजारी है इस जगह, और मज़ीद वह इस जगह हरगिज़ नहीं रहना चाहती। ओह हाँ, जाना तो है, लेकिन अभी तो सुबह सुबह है, तुम नाश्ता वगैरह तो कर लो, फिर खुद छोड़ कर आऊँगा मैं, क्योंकि लेकर भी तो मैं ही आया था, और वैसे भी मैं ये हरगिज़ नहीं चाहता कि किसी की भी नज़र तुम पर पड़े। सनम को लेकर अरहम बेहद पोजेसिव हो चुका था। वो हरगिज़ नहीं चाहता था कि इसके अलावा सनम पर किसी भी और शख्स की नज़र पड़े। मुझे भूख नहीं है और मैं खुद चली जाऊंगी। सनम ने भी साफ मना कर दिया अरहम का एहसान लेने से। वो खुद यहाँ से जाने की हिम्मत रखती थी, बस इसे वहाँ से जाना था अपने घर। इसे फिक्र थी अपनी माँ की कि इन पर क्या बीत रही होगी। ओह अच्छा, लेकिन ऐसी हालत में अगर जाओगी तो लोग क्या सोचेंगे? अरहम सनम की बात पर एक नज़र गौर से इसके वजूद पर डालते इसकी हालत के बारे में इसे आगाह करने लगा। मैंने कहा ना तुमसे कि मैं ही तुम्हें छोड़कर आऊँगा। हाँ, लेकिन एक काम तो करना ही भूल गया, जो कि सबसे ज़रूरी है। अपने भवन को उठाते इसने एक काम करने का कहा। क्या मतलब? सनम हैरान होती पूछने लगी, क्योंकि वो हैरान थी कि आखिर अरहम करना क्या चाहता है। अब कौन सी हरकत बची है करने के लिए? बेड से उतरता और साख्ता खड़ी सनम के करीब आने लगा। तुम अब क्या करना चाहते हो? ऊपर नजरें किए वो अपने सामने लंबे चौड़े शख्स, जिसकी मुश्किल वो कांधे जितनी थी, को देख इससे सवाल को हुई। लेकिन अरहम बिना इसके सवाल का जवाब दिए इसके करीब आता, एक ही झटके में इसे थाई से पकड़े, ड्रेसिंग टेबल पर बिठाता, इसकी गर्दन पर गिरे बालों को पीछे करता, इस पर अपने चेहरे को झुकाए हल्के से काटने लगा। सनम मुसलसल इसे दूर करने की कोशिश कर रही थी कि रात को तो ये क्या कुछ कह रहा था, लेकिन अब क्या कर रहा है वो यही सोच रही थी कि शायद अरहम अपनी बात से मुकर चुका है। 2 मिनट तक वो एक जगह अपने दांतों से काटता दूर हो गया। अब लग चुका है तुम्हारी गर्दन पर ऐसा निशान जिसे देखने के बाद तुम्हारे मुंह से बोला जाने वाला सच लोगों को झूठ लगेगा। अरहम, जो कि बेहद कॉन्फिडेंट हुए अपनी बात को कह गया। शायद वो लोगों की सोच को मद्देनज़र रख कर ही ये बात कह रहा था, या इसे खुद पर और अपनी बातों पर बेहद भरोसा था। चलो अब छोड़ता हूँ तुम्हें, क्योंकि यार वापस तुम्हें इसी घर में ही भी तो लाना है, अपनी बीवी बनाकर। अरहम इसे अपने साथ जाने का कहने लगा, और साथ ही वो ये बात भी बता चुका था कि वापस इसने इसे इसे घर अपनी बीवी बनाकर लाना है। ऐसा कभी नहीं होगा कि वापस मुझे इस घर में आना पड़े। वो भी पूरा एतमाद हुई बोल पड़ी कि वापस इस घर में वो हरगिज़ न आएगी। इतना कहे वो अपने दुपट्टे को उठाए अच्छे तरीके से खुद को लपेटने लगी, लेकिन दुपट्टा छोटा होने के बायस इसके फटे कपड़े वाज़े दिखाई दे रहे थे। इसी वजह से अरहम अपनी वार्डरोब को खोले, अपनी शर्ट को निकाले, इसे पकड़ाता, ये लो और पहन लो, क्योंकि मैं ये हरगिज़ नहीं चाहता कि तुम पर किसी की भी नज़र पड़े और कोई और तुम्हारे बारे में गलत बातें करे, तुम पर इल्ज़ाम मत लगाए, या तुम किसी भी शख्स की बेफिजूल बातों का मौजू बनो। मुझे नहीं ज़रूरत इसकी, मैं ठीक हूँ, कहती सनम ने इसकी शर्ट को वापस कर दिया, क्योंकि इसे अरहम की किसी भी चीज़ को अपने पास रखने की ख्वाहिश न थी। लेकिन अरहम खुद ज़बरदस्ती इसके पास आता। मैं जो कहता हूँ चुपचाप से मान लिया करो, वरना ज़बरदस्ती भी तो करनी ही पड़ती है ना। तुम्हारे साथ मुझे खुद इसके कांधों पर अपनी बड़ी सी शर्ट, जिसमें वो छुप सी गई थी, को पहनाए, वो खुद भी दूसरी शर्ट को पहनता बाहर की तरफ जाने लगा। आ जाओ बाहर, इंतज़ार कर रहा हूँ तुम्हारा। इतना कह अरहम बाहर चला गया और सना भी शर्ट को ठीक करती बाहर चली गई। घर से बाहर निकले इसे अरहम एक बड़ी सी गाड़ी, जो कि कल वाली गाड़ी से मुख्तलिफ थी जिसमें अरहम इसे लेकर आया था, के करीब खड़ा देख सना भी सर झुकाती इस गाड़ी के पिछले डोर के पास जाने लगी। लेकिन अरहम इसे बाजू से पकड़े फ्रंट सीट के डोर को ओपन किए ज़बरदस्ती वहाँ बिठाता। ड्राइवर नहीं है तुम्हारा ड्राइवर नहीं है तुम्हारा तो खुद को मालकिन समझना बंद करो। एक तो वापस तुम्हें छोड़कर जाते हुए मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, ऊपर से तुम्हारे ड्रामे ही ख़त्म नहीं हो रहे।
जानती भी हो कि अरहम राना ने कभी भी किसी भी काम को करने के लिए इतना टाइम ज़ाया नहीं किया, लेकिन तुम्हें ये बात साबित करने के लिए कि कौन तुम्हारे मामले में मुखलिस है और कौन नहीं, मुझे ये सब करना पड़ रहा है, वरना इस टाइम तो हमने बिस्तर पर होना था। अरहम की बात सनम को खासी बुरी लगी, लेकिन फिर भी वो एक नज़र गुस्से से इसकी जानिब देखती नज़रों को नीचे कर लिया। सनम के खामोश रहने की ये हरगिज़ वजह न थी कि वो इसका कहा सच मान चुकी है, बल्कि वो तो चुप्पी का सहारा इसलिए ले रही थी ताकि इसके किसी भी बात से अरहम को गुस्सा ना आ जाए और वो इसे वापस घर छोड़ने का इरादा बदल दे। एक नज़र सनम को देखता अरहम भी खामोशी से दूसरी साइड पर जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठे गाड़ी चलाने लगा। कुछ देर बाद गाड़ी में यूं ही खामोशी छाई रही, लेकिन इस खामोशी को अरहम ने सनम का घर पूछ कर तोड़ी कि वो कहाँ पर रहती है। गहरी सोच में गुम सनम अरहम के सवाल पर सीधी होते हुए बैठती, वो मेरा घर नाज़िमाबाद में है, तुम बस सड़क पर गाड़ी रोक देना, मैं खुद चली जाऊंगी। और ये हरगिज़ न चाहती थी कि कोई भी इसका मोहल्ले वाला अरहम को इसके साथ देखे कि सनम ये किस अनजान शख्स की गाड़ी से उतरी है। हाँ में सर हिलाए अरहम इसके बताए गई जगह पर पहुंच गया, क्योंकि नाज़िमाबाद करीब ही था। सड़क के करीब गाड़ी को रोक वो सनम की तरफ देखने लगा कि वो इसे क्या कहेगी। सनम बगैर इसकी तरफ देखे जल्दी से सीट बेल्ट को खोलने लगी, लेकिन इसके अटकने के बायस वो इससे खुल ही ना पा रही थी और दूसरा इसकी जल्दबाजी मज़ीद देर करवा रही थी इसे। सनम को बुरे तरीके से सीट बेल्ट को खोलते देख अरहम इसकी बाजू को पकड़े, मदद मांगने से तुम छोटी नहीं पड़ जाओगी। न जाने क्यों अरहम का दिल उदास हो चुका था। अरहम को खुद इसके घर तक छोड़ने की वजह से इसके करीब होता वो खुद सीट बेल्ट को खोलने लगा। अरहम की परफ्यूम की खुशबू वो साफ सूंघ सकती थी, क्योंकि अरहम इसके बिल्कुल करीब था। इसकी परफ्यूम भी सनम के अंदर झुर्री पैदा करने का बायस बन रही थी। जबकि अरहम ने सीट बेल्ट को खोल ना दिया, तब तक वो अपनी सांसों को रोके हुए थी। जा सकती हो तुम, अपना काम किया। अरहम वापस अपनी सीट पर बैठी इसे जाने का कहा। ये अल्फाजात इसके दिल से ना निकले थे, बगैर वो किसी भी बात की परवाह किए तेज़ी से गाड़ी के दरवाजे को खोले बाहर निकलकर जाने लगी। इसने ये तक भी ना देखा कि कौन इसे देख रहा है और कौन नहीं। वो बस सीधा अपने घर की तरफ ही जा रही थी। अरहम खामोश बैठा गाड़ी की विंडो में से सनम को जाते हुए देखे जाए। सनम गली में पहुंचते ही न जाने क्यों एक मर्तबा वापस मुड़कर देखा, लेकिन अरहम को इसी की तरफ देखते देख वापस से पलटती तेज़ी से अपने घर की तरफ चली गई। और अरहम को भी चूँकि सनम अब दिखाई न दे रही थी, इसी वजह से वो खुद गाड़ी को चलाए जाने लगा। सनम के घर का दरवाज़ा जो कि पहले से खुला हुआ था, इसी वजह से वो दरवाजे को नॉक किए बगैर घर के अंदर दाखिल हुई। सनम की वालदा रोने में मसरूफ़ थी और माजी ने तसल्ली देने की कोशिश कर रहा था। वो बेहाल से हुए रोई जा रही थी। एक माँ के लिए के दिल को तसल्ली कहाँ मिल पानी थी, जब तक कि इनकी औलाद के बारे में वो मुतमिन ना हो जाए कि वो ठीक है। अपनी वालदा को यूँ रोते देख खुद भी इमोशनल होती सनम अम्मी कहती सबका ध्यान अपनी तरफ मतवज्जो करने का बाइस बनी, क्योंकि अपनी माँ के अलावा इसके पास और रिश्ता भी कौन सा था। इसके लिए इसका हर रिश्ता दुनिया ज़िंदगी इसकी माँ ही थी। हाँ, बेशक वो माँ से मोहब्बत करती थी, लेकिन अपनी वालदा से बढ़कर नहीं। माज़ो सनम की वालदा ने सनम की तरफ देखा तो इनके पाँव तले ज़मीन ही खिसक गई। इसकी हालत को देख शॉक्ड थे कि इसे क्या हुआ, कैसे वो वापस घर आ गई और इसके कपड़े फटे हुए क्यों हैं और ये किस मर्द की शर्ट को लिए इसने खुद को छुपाया है। आखिर इस एक रात में इसके साथ हुआ क्या है, क्योंकि सनम की हालत में यूँ दिखा रही थी कि जैसे कि इसके साथ ज़बरदस्ती की गई हो। लेकिन यह बात हैरान कौन थी कि आखिर सनम वापस कैसे आई। क्या इस शख्स का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इसके साथ ज़बरदस्ती तक करने का ही था, जो कि वो अपने काम को कैसे छोड़ गया। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें और